Hello, my dear students of class 10. So, welcome back to another class at Ganit Guru YouTube channel. So, today we'll have another session of trigonometric identity. And in this session, how to think and how we should apply the formula identity to solve the following questions, we'll see in details. And I'm damn sure after this class, the students of class 10 is going to have a clear idea where to use which formula, why to use this particular formula. So without wasting time, let's start the journey of zero to hero. So पहले हम आज के इस क्लास में बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में, जहां पे पहले ही हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 निकल के आता है और यही है हमारा पहला आइडेंटिटी। दूसरा यही से निकल के आता है कि अगर हम इस तरफ साइन स्क्वायर थीटा को रखें तो उस तरफ क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी फॉर्मूले से निकालें, अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहां पर है तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बच्चों, इसको हम कहते हैं मादर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मादर फॉर्मूला, ठीक है। और ये जो अगला दो है ना, उसको हम बोलते हैं बेबी फॉर्मूला, मतलब इसी से निकल के आता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर और बारीकी से देखें, यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec square theta. So dear students, this is also another mother formula which you must memorize, and it's very easy, I think. Okay, so whenever we have in the next formula, we are deriving the next formula from this, what I can write that sec square theta minus tan square theta is equal to 1. When tan square theta is taken to the right side, we can get what in the result 1. So this is also a baby formula. Similarly, we can have one more formula like tan square theta minus sec square theta equal to minus 1. Clear na? Clear. Similarly, I can write sec square theta minus 1 equal to tan square theta. So what I got, there is a two mother formula we got. From that particular formulas we have derived. So what you have to memorize? Only these two. You have to memorize only these two formula. Okay. Now we'll move to another mother formula that is called 1 plus cot square theta equal to cosec स्क्वायर थीटा। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है ये वाला, ठीक है। अगर किसी ने पहले ये वाला ना करके क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया, आई रिपीट, नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि आपको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, मतलब जानना है। इसके बाद आप कुछ भी कर लो, ठीक है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हैं, लेकिन स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी तक जिस किसी ने भी हमारा ये वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप योर आई till the end of this video so that you can have all clear idea about trigonometric identity. I'm damn sure. Okay, so let's see the next part. This is also a mother formula, as I said. So next, what I can say, similarly as I said in the previous, so I can say cosec square theta minus cot square theta is equal to what? Is equal to 1. Similarly, even I can say cot square theta minus cosec square theta is equal to minus 1. Similarly, I can say cosec square theta minus 1 equal to cot square theta. And that's all. Only 3 mother formula, and from that 3, 3 and 2, total 8 baby formula are coming up. Okay, so within 5 to 10 minutes, what you have to do, you write in your copy. You write in your copy many times, you will not forget. You have to remember, when 1 is along with the tan, it coming sec. When it is along with cot, 1 with cot, we are getting as cosec. Done, na? Along with that, I hope you know the remaining part. Na? I mean, whenever we are having sin theta is what? 1 by cosec theta. Whenever we are talking about cos theta, we can say 1 by sec theta.
isn't it? Whenever we say tan theta, it is nothing but 1 by cot theta and vice versa. That means whenever we say cosec theta, I can write 1 by sin theta. Whenever we say sec theta, we can say 1 by cos theta. Whenever we say cot theta, we can say 1 by tan theta. And dear students, most important, that is, if you write like sin theta na, it will be 1 by cosec theta. If you write cosec theta, it will be 1 by sin theta. Similarly, if you write sec theta, it will be 1 by cos theta. If you write tan theta, it will be 1 by cot theta. Similarly, if you write cot theta, it will be 1 by tan theta. If you write cos theta, it will be 1 by sec theta. Okay, these are different and very much easy, I think. साथ ही साथ एक मास्टर स्ट्रोक क्या बोलता है कि अगर tan थीटा हम लिख सकते हैं, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा. साथ ही साथ अगर हम बोले cot थीटा, क्या बोलेंगे, cos थीटा बाय sin थीटा, उल्टा बोलेंगे. आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा. और ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर कोई सोचता है ये वाला ना करके क्वेश्चन जाएंगे तो गलत कर रहे हो बेटा, ठीक है. आपको ये वाला खत्म करना है पहले. तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले के जरिए हेल्प से आपको ये वाला क्वेश्चंस कर लेना. और इस क्लास में मैंने आप लोगों के लिए टोटल 10 ऐसे क्वेश्चंस प्रेजेंट किया. मैं समझाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड, फ्रॉम फाउंडेशन टू एडवांस लेवल. ओके, सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बाहर क्या है, cosec स्क्वायर थीटा. हमको क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 आता है. तो हम क्या ले लेंगे, पहले LHS हमने ले लिया. LHS, चलो LHS ले लिया. यहाँ पे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. याद करो मैंने क्या बताया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बेबी फॉर्मूले के अनुसार क्या आता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आता है. और बाहर क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा. बाहर क्या था, cosec स्क्वायर थीटा. और उस cosec स्क्वायर थीटा को हमने क्या बोला, हम क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा. और इसी के साथ दोस्तों हम ये दोनों को काट सकते हैं. सो हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 1. RHS प्रूव्ड. सो यहाँ पे हमने देखा कैसे आइडेंटिटी के मदद से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बाहर है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है 1. हम देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है. हाँ बेशक क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा. और ये वाला हमारा LHS हमने ले लिया था. ठीक है, सो cosec स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था ना, बाहर का हम उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल बना देंगे. एक और चीज, आप अगर चाहो बाहर का सेम रख सकते हो, अंदर का रेसिप्रोकल भी बना सकते हो. आंसर सही नहीं आएगा. ठीक है, सो तुम्हारी मर्जी कौन सा करोगे. ठीक है, फिर क्या करना, हमको ये दोनों को कट कर देना. आंसर क्या निकल के आता है, 1. RHS प्रूव्ड. खत्म. अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं. यहाँ पे हमको क्या करना है, LHS ले लेना है. LHS क्या है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. याद करो मैंने क्या बोला, sec स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट क्या था रे, tan स्क्वायर थीटा. बाहर क्या है, cot स्क्वायर थीटा. हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना. तब हम इसको आसानी से काट सकते हैं. और आंसर क्या निकल के आता है, आंसर निकल के आता है 1, जो कि हमारा RHS राइट हैंड साइड प्रूव्ड. हाँ, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे. ठीक है, बेसिक टू एडवांस. ठीक है, हम अब देखने वाले हैं कि इसको कैसे करते हैं. देखो हम यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, LHS लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद करो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या लिखे हम, यहाँ पे क्या लिखे, tan स्क्वायर थीटा. क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. सही है ना. फिर इधर क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. याद करो फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा. बेबी फॉर्मूले में हमने बताया था. और अब क्या करना है, तुम्हारी मर्जी, इसको ट्रांसफॉर्म करो, इसको ट्रांसफॉर्म करो, किसी को भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने पहले को सेम ही रखा, अगले वाले को हमने
tan स्क्वायर थीटा को हमने cot स्क्वायर थीटा को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम काट देंगे, आंसर कितना निकल के आता है 1। RHS प्रूव्ड। तो बच्चों हमने सक्सेसफुली इसको भी कर दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, बाहर क्या है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, याद करो आइडेंटिटी कौन सा था रे, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। हम उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ये वाला क्या था LHS। अगला वाला क्या करेंगे, हमको अभी सोचना है, हमको अभी सोचना है कि हमको tan निकालना है ना, तो sec स्क्वायर को थीटा को क्यों ना हम 1 बाई cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं बेटा, tan स्क्वायर थीटा। बेशक RHS प्रूव्ड, खत्म ना, कहीं मत चाहिए। सो डोंट गो एनीवेयर, कीप योर आई ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर दो। हमको क्या करना है बेटा, पहले sin स्क्वायर थीटा लिख लेना है, फिर नीचे का जो हिस्सा है उसको हम आइडेंटिटी के थ्रू उसको चेंज करने का कोशिश करेंगे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बोले थे हम, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, ये वाला LHS था, सही है ना। फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 बाई sec स्क्वायर थीटा, इसको हम क्यों ना cos स्क्वायर थीटा लिख दे। और अल्टीमेटली हमको मालूम है, पहला ही आइडेंटिटी हमने लिखा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 1 निकल के आता है। RHS प्रूव्ड। तो बेटा ये वाला भी हमारा आंसर निकल के आ गया, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हमको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, ठीक है। इसको अगर आसानी से करना चाहो तो पहले LHS ले लो एज इट इज, फिर हम देखेंगे 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, बेशक sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, बेशक cosec स्क्वायर थीटा। और यही बात मैं बता रहा था कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है, आइडेंटिटी का जितना भी है आपने याद नहीं किया, आपको फटाफट लिख के प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है। और जो मैंने बताया कि पहले ही मैंने बता दिया कौन कौन सा क्या करना है, मदर फॉर्मूला बेबी फॉर्मूला वहां से सीख लो, एनफ है, ठीक है। सिर्फ आपको अप्लाई करना है और कुछ नहीं। और इसी चैप्टर को पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स लोग बहुत डरते हैं, और ये जो डर है ना मैं आज के इस क्लास के थ्रू मिटाने वाला हूं। और यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ऐसे किए जाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री का और भी सीरीज लाऊंगा जहां पे मैं 10-10 क्वेश्चंस करके टोटल 10 सीरीज लाऊंगा, ठीक है। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 10 तक, ठीक है। ये वाला सीरीज 1 था, ठीक है। सो बहुत ही बेसिक से कराएंगे, तो देखिए, ठीक है। और एग्जाम में हार के आइए। यहाँ पे देखिए 1 बाई sec स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेशक cos स्क्वायर थीटा। और 1 बाई cosec स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेशक sin स्क्वायर थीटा। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर cos स्क्वायर थीटा तो बाद में, कोई बात नहीं बेटा, 1 प्लस 2 जो होता है 2 प्लस 1 भी यही होता है। इसी तरह a प्लस बी और b प्लस ए एक ही है, सही है ना। सो इसलिए इसका आइडेंटिटी कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो RHS वेरीफाइड और प्रूव्ड, सही है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम देखेंगे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाला थोड़ा अभी लंबा जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया ना कि वी विल मूव फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, कुछ रिलेट कर पा रहे हो बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। सो हम क्या बोले, a प्लस बी a माइनस बी मतलब इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सही है ना, b स्क्वायर, हाँ सही है। हमने इसको कर दिया। और यहाँ पे क्या रहता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगला वाला हमको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sin स्क्वायर थीटा होता है सर। फिर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सर cosec स्क्वायर थीटा होता है। शाबाश, सही है ना। हाँ सो हमने अभी कर दिया, ठीक है। चलते थोड़ा ऊपर, हम इसको एज इट इज रख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम उसको भी रेसिप्रोकल कर सकते हो।
क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पे हम उसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। फिर उसको काट सकते हैं, आंसर कितना निकल के आता है 1, RHS प्रूव्ड। सही है ना। सो ये वाला सेशन 1 था। टोटल कितना सेशन कराएंगे, 10 सेशन कराएंगे इस तरीके से, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन इस सेशन का, और इसको आप क्वेश्चंस लिखे बिना देखे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलते हैं इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, देखो इससे ये वाला को, इससे ये वाला को, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। क्यों, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करने से, यहाँ पे हमको दिखाई मिल रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। तो क्यों ना हम यहाँ पे ये वाला इंटू ये वाला करने से, इसमें भी तो कोसेक थीटा आएगा ना, प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉस थीटा। सो हाउ टू थिंक, व्हाई टू अप्लाई दिस वन, ये वाला आपको अच्छे से समझना है। मैं यही आइडेंटिटी क्यों अप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को RHS में 1 चाहिए, और बेस्ड ऑन दैट मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोसेक थीटा एज इट इज रखेंगे। यहाँ पे क्या था, देखो पहले कॉट था ना, हमको अगर यहाँ पे क्या लाना है, अगर यहाँ पे भी हम कॉट लाए तो a प्लस बी a माइनस बी अप्लाई कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कॉस है, तो कॉस को रखेंगे, कोसेक थीटा को ना लिख के हम 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे, ताकि यहाँ पे हमारा क्या बन जाए, कॉट थीटा बन जाए, ठीक है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये वाला एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम करेंगे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सही है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलो बच्चों अब करते हैं, क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, हाँ क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बेशक ये वाला क्या होगा, हमने बोला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था ना, हमने बोला। अच्छा तो ये वाला क्या आएगा, हमने आइडेंटिटी में बोल रखा है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी में पहले पेज पे देख लीजिए, ठीक है। तो आ गया हमारा RHS प्रूव्ड, हो गया हमारा वेरीफाइड कि ये वाला टोटल निकल के क्या आता है 1 निकल के आता है। सो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। सो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अभी तक हमने देखा हर किसी का दाहिनी तरफ क्या था 1 था, ज्यादा से ज्यादा 1 था ना, अभी -1 है। क्या करना है यहाँ पे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या करना है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, LHS ना, LHS लिख दिए। फिर हम यहाँ पे देखे कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। सो अगर हम बोले कि कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि इसको हम ट्रांसफॉर्म कर दें, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अल्टीमेटली क्या आता है, ये दोनों कैंसिल आउट होके -1 निकल के आता है, RHS प्रूव्ड। सो बच्चों ये था हमारा बेस्ट बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ पहला 10 क्वेश्चंस। मैंने पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है NCERT का ट्रिगोनोमेट्री में, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही स्पेशल है उन स्टूडेंट्स के लिए जिसको ट्रिगोनोमेट्री से डर लगता है, स्पेशली आइडेंटिटी से। और आई एम डैम श्योर जो कोई भी हमारा ये 10 सीरीज देखेगा उसको एक भी डाउट नहीं रहने वाला, उसका जितना भी भय है, डर है इस चैप्टर को लेकर खत्म हो जाएगा। और देखते रहिए हमारा अगला सीरीज, और तब तक विदा लेते हैं, राधे राधे।